اور اس وقت آپ کو لیے چلیں گے پنجاب اسمبلی کے باہر، جہاں پر حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ سٹارٹ کریں۔ کلیئر ہو؟ جی 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 حمزہ صاحب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل نیشنل اسمبلی میں ایک جو روایت چلی آ رہی ہے پچھلے 10 سال سے، میثاق جمہوریت ہم نے سائن کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اصرار تھا کہ اس روایت کو برقرار رہنا چاہیے، اور 100 دن جو ہیں ہم یہی کہتے رہے کہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں اس کو برقرار رہنا چاہیے، لیکن حکومت کا اصرار تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک خوشائند بات ہے کہ چلیں 100 دن بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ اپنا جو ہے نا اس طرح پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے نہیں چل سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کو دیگر چیلنجز ہیں، ہم اپنا جو ہے وہ پاکستان کی خاطر پورا اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ اب پارلیمنٹری نارمز کو اور پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے حکومت کو اب اگلے 100 دن جو ہے وہ سمجھنا نہیں پڑے گا، بلکہ اب یہ اپنا جو ہے نا وہ چیزیں چلیں گی، اور قانون سازی جو ہے جو اولین کام ہے اس کو اپنا اس کے لیے راہ ہموار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہیں، ایک بہت محنتی انسان ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ فی الفور جاری کیے جانے چاہیے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ 3 صوبائی اسمبلیوں میں یہ اپنا جو ہے وہ رولز ہیں، یہاں پر نہیں ہیں، تو نہیں ہے تو اس سے آگے چلنا ہے نا، ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے، تو وہ بننے چاہیے فی الفور، اور وقت بدلتا رہتا ہے۔ آج جو ٹریجری بینچز پہ ہیں کل اپوزیشن بینچز پہ ہوں گے، تو اس حوالے سے ہمیں اپنا جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے۔ تو اگر 3 اسمبلیوں میں رولز موجود ہیں، یہاں بھی اپنا اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ ان کی اپنا گنجائش پیدا کریں، اور ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں فی الفور جاری ہونے چاہیے۔ اس میں انہوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق تفصیلات رکھی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ پنجاب کا جتنا بجٹ ہے اس سے زیادہ مالیت کی زمین واگزار کرائی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے کافی لوگوں کے انہوں نے نام دیے ہیں کہ جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اتفاق باؤنڈری کا بھی ذکر آیا کہ 240 کنال اس پہ بھی جو ہے وہ قبضہ ہے ابھی تک۔ دیکھیں یہ ایک مذاق بن گیا ہے۔ ابھی کراچی میں آپ کے اپنے جو لوگ ہیں وہاں کے پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم نے غریبوں کے ٹھیلے گرا دیے، ہم نے اپنا جو ہے وہ لوگوں کے گھر گرا دیے، تو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی جو غریب لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکاڑا میں ایک شخص کو اس کا گھر گرا دیا گیا، اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنا فوت ہو گیا۔ تو مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ یہ کام نہ کریں کہ غریبوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائیں، اور ابھی بھی آج تک کی تاریخ میں بنی گالہ میں جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کے اوپر تو ابھی تک کچھ کارروائی نہیں ہو سکی، اور غریبوں کی اپنا جو ہے وہ کل کائنات جو ایک گھر ہوتا ہے، ایک کچی چھت ہوتی ہے، ایک ریڑھی، ایک کھوکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے پورے پنجاب میں اس کو صفایا کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، میں تو اس پہ یہی کہوں گا۔ اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز کیا گیا ابھی اس بارے میں، کیا آپ کا نام بلیک لسٹ میں تھا؟ آپ اشتہاری ہیں، آپ موسٹ وانٹڈ ہیں، آپ کرمینل ہیں، آپ کیا ہے کہ آپ کو جہاز کے اندر ہی نہیں بیٹھنے دیا گیا، ملزموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا گورنمنٹ کالج کے اندر 19 سال کا تھا،
उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था और मुझे अपना जो है ना वो 6 महीने जेल मैंने काटी थी और उस जेल के बाद जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो अदालत ने मेरा केस क्वाश किया था। इसका मतलब ये है कि ये अंडर एज था, इस पे मुकदमा बनता ही नहीं था। उसके बाद मुशर्रफ साहब का 10 साला दौर था जब लोगों को मुल्क से जाने की इजाज़त नहीं होती, मुझे शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और मुझे अपना जो है वो हर तरफ पीछा किया जाता था। 10 साल की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त भी अल्लाह के फजल व करम से शरीफ ख़ानदान सुरखरू हुआ था। आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। जब मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे तो मुझे बताया जाता है जी कि आपका नाम जो है आप जा नहीं सकते। मैंने कहा मेरा नाम ECL में नहीं है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा बुनियादी हक है कि मैं अपना जो है उसको इस्तेमाल करते हुए बाहर जाऊं। अपना जो है वो नहीं जी नहीं, आपका अपना जो है ना वो ऊपर से हुक्म आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आते जाते रहते हैं। पाकिस्तानी कौम जानती है 1993 में भी अल्लाह के फजल व करम से मैं एक सियासी कारकुन हूँ। 10 साल मुशर्रफ के भी अपना जो है वो हमने बर्दाश्त किए। अब भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर यही कहना मुनासिब है कि मुझे नियाज़ी साहब पर तरस आता है। तरस इसलिए आता है कि वो दिन रात बुग़्ज़ और हसद की आग में जल रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, जो कौम से आपने वादे किए हैं वो पूरा करें। मुझे रोककर अगर आपका बुग़्ज़ और हसद ठंडा होता है तो वो करने, लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ अल्लाह के फजल व करम से कि ना कभी पहले कोई ऐसा इक़दाम किया है, ECL में नाम ना होने के बावजूद ऐसा सलूक किया गया जो एक दहशतगर्द के साथ होता है, एक तखरीबकार के साथ होता है। तो लेकिन हमें परवाह नहीं है। आप इस तरह के ओछे हथकंडे आजमा कर अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जानती है कि हमने 10 साल मुशर्रफ का भी एहतसाब झेला है। आपका भी अपना जो है वो बहुत और हसद ठंडा हो जाए। लेकिन नाजी साहब, बात करने से पहले, कोई ऐसा हथकंडा आजमाने से पहले अपनी काबीना में भी दाएं बाएं अच्छा अब्दुल्ला साहब अपने सब प्यारे हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं, प्यारे हुसैन चौहान साहब का कहना है हम गरीबों की बात की है। साहब ने भी कहा कि हमको हमें मौका मिला तो हम इसको तब्दील करेंगे इन कवानीन को। क्या कहेंगे? कैसे कवानीन को? नैब के कवानीन को। क्या आप समझते हैं कि नैब को तब्दील होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ अपना ये ख्याल है और पाकिस्तानी कौम रोज़ देखती है। किसी को केस बनने से पहले बुलाया, किसी अपना केस में जाता है, गिरफ्तार किसी केस में कर लिया जाता है। कोई ऐसे हैं जिनके ऊपर रेफरेंस भी फाइनल हो चुका है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अपना जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब बस कर दो। ये हालिया रिमार्क्स हैं कि आप अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को समझना होगा, एहतसाब के हक़ में हम हैं। एहतसाब होना चाहिए। जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यकतरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए। ये नैब का कानून जो है इसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि कौम को भी एतमाद हो कि वाकई एहतसाब हो रहा है। ये तो एहतसाब के नाम पर नियाज़ी साहब इंतकाम ले रहे हैं। हमजा साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज जो है वो पतली गली से निकलना चाह रहे थे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ये जैसे मुझे पता लग जाएगा मैं बता दूंगा। आपने गरीबों की बात की है बार बार, लेकिन सवाल ये था कि इत्तेफाक फाउंड्री की 240 कनाल अराजी जो है वागुजार करवाई गई है, तो क्या आप भी गरीब हैं? ये बात ऐसी है, जिस तरह 56 कंपनियों का जिक्र आता था ना, आज 56 कंपनियों का कहीं जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ को कहा जाता था कि ये आशियाना में अरबों रुपए का गबन किया है। आखिरी जो पेशी थी उस पे नैब के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, ना 1 इंच ज़मीन गई, ना 1 पाई कौमी ख़जाने से गई। तो ये राम कहानी छोड़ दें, लोगों के काम करें। आज कराची की आवाम जो है वो गैस को तरस गए हैं, CNG स्टेशन बंद हैं, बसें बंद पड़ी हैं, वो आपकी जान को रो रहे हैं। आज महंगाई से एक गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। तो मेहरबानी करें, खुदारा रहम करें, वो 100 दिन का रोना
था तो आपने रो लिया, जिसमें से कुछ भी नहीं निकला। आगे आप कोई कौम की खिदमत करें, वरना कौम से माफी मांग के घर चले जाएं। हमजा साहब ये बताइएगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, अरकान कह रहे हैं, पीटीआई के अरकान कह रहे हैं कि हमारे दौर में मोनस इलाही जब गिरफ्तार हुए तब भी प्रोटेक्शन ऑर्डर हमने मांगा, तब नहीं दिया गया, तो अब जो है अपोजिशन प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात कर रही है। मैंने कह दिया कि अगर तीनों असेंबलियों में कानून मौजूद है तो ये भी तो अपना 10 साल पहले ये भी थे जो आज अपना बात कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं कानून बनाया इन्होंने? परवेज इलाही साहब भी तो थे यहाँ पे ना। तो ये बातें जब आप माजी में जाएंगे ना तो हल नहीं तलाश होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 गलतियाँ करके एक सही काम नहीं कर सकते। आइए बैठें और आगे की सोचें और बैठकर अपना जो है प्रोडक्शन ऑर्डर। फैजल हसन चौहान साहब कहते हैं कि मेरी वजह से आज हमजा शहबाज असेंबली में आए हैं और उनको मैंने कई मरतबा पैगाम भी दिया और आज अच्छा, आपके बारे में आप जरा ध्यान से रहिएगा, शायद आपके खिलाफ भी शुरू हो जाएगी नायब इन्वेस्टिगेशन आपके बारे में करना। ये एक तमाशा है और पूरी कौम देख रही है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि 10 साल आमिर मुशर्रफ के दौर में जब अकेले को यहाँ पर वो गिरवी रखा हुआ था, इन्होंने अगवा करके रखा हुआ था कि लाहौर से बाहर नहीं जा सकता, उस वक्त भी सुरखरू हुए थे। इंशाअल्लाह ताला आज भी सुरखरू होंगे। ये टाइट हो क्या जाए जाने का। आपको बताएं कि लाहौर में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, और लाहौर में वो गुफ्तगू कर रहे थे। गुज़िश्ता कई सालों से कहते रहे कि पार्लिमानी रिवायत को चलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा था कि ऐवान के साथ चलेंगे। शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही कहा था कि माशी बहरान समेत दीगर चैलेंजेस पर भी साथ देंगे। सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी किए जाएं।